Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome you all on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss the syllabus. Yes, as you know that CBSE has recently issued the syllabus for all the subjects for session 2021 and 2022. In this video, first we will cover the syllabus. I will tell you the main points, कौन-कौन से chapters हैं, how to cover that, plus आपकी weightage क्या है हर एक chapter की, हर एक unit की, that we will discuss. Plus later on I will tell you कि everything is uploaded on my channel, how to access those chapters. आपने उसमें से कौन से chapters किस तरीके से access करने हैं मेरे channel से, that I will tell you, right? So now let's start our today's video. So the very first thing I will tell you how to download the syllabus. First of all, you have to open any web browser installed in your system. After that, you have to open the CBSE academic website, and the name of that website is cbseacademic.nic.in. Yes, this you have to type in the address bar and then press the enter key. I will provide you the link of this computer science syllabus in the description of my video also. You can download it from there also. After that, you have to click on this curriculum option. Then obviously the session आपने select करना है, यहाँ से 2021 and 22. So you have to select from here 2021 and 22. After that, you have to select the class. If you are in 9th and 10th, you have to select the secondary curriculum, and if you are in 11th and 12th, then you have to select the senior secondary curriculum 11th and 12th. In languages option, आपके पास जितने languages हैं वो सारे subjects के syllabus given है, and you have to select in academic electives option for computer science. So here you can see it's mentioned कौन से subject का syllabus हमें download करना है, computer science. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, the procedure will be same. You just have to select the subject. Then click on this computer science. So after processing, the syllabus will get open. And by clicking here on this option, this one, you can download the syllabus in your system also. You can for syllabus, you can check the description of my video. I will provide you the syllabus, this PDF format in the description of my video also. So to download, just click on this download option, select the location and then click on the save option. So as you can, इतना आपको पता होगा, you are in class 12 and computer science student. So अब यहाँ पर हमारा syllabus download हो चुका है, right? Let me cross it from here. Yeah. So for class 11 and 12 आपका जो computer science का subject code है बेटा, that is code number 083. And this is the session mentioned 2021 and 22. Criteria will be same, that means 70 plus 30 जो आप लोगों का 11th में है, right? 70 marks theoretical and 30 marks for practical. If you are in class 11th, so this is your syllabus. And if you are in class 12th, so आपका curriculum यहाँ से start है from page number 5, right? अब I hope आपने अपना 11th class का अच्छे से करा है. This is the basic जो आपका 12th में यूज होगा. तो अगर हम यूनिट्स की डिवाइड करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, जो आपका चैप्टर वाइज वेटेज है, दैट इज नॉट बीइंग इशूड बाय द सीबीएसई, बट हाँ यूनिट वाइज आपको जो है क्राइटेरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दैट इज बीइंग गिवन बाय द सीबीएसई. टोटल 3 यूनिट्स आर देयर इन योर करिकुलम. फर्स्ट वन इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2. इसका जो पार्ट 1 है, दैट यू ऑलरेडी हैव कवर्ड इन योर क्लास 11th. वो आपका आएगा बेटा 40 मार्क्स का. कंप्लीट पाइथन है इसमें आपकी. देन नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क. दिस इज ऑफ 10 मार्क्स, थ्योरेटिकल चैप्टर है. एंड देन डेटाबेस मैनेजमेंट, इसमें आपका सीक्वल है बेटा, MySQL प्लस पाइथन और MySQL की कनेक्टिविटी. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. दिस विल बी ऑफ 20 मार्क्स. 70 मार्क्स आपके थ्योरेटिकल है बेटा, प्लस 30 मार्क्स का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल. सो अभी ये सेशन स्टार्ट हुआ है. स्टार्टिंग से ही आपने बिल्कुल अपने जो मेन एम है टारगेट 100 बाय 100
उस पर फोकस करना है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स कुछ डेज वेस्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे फॉर दैट, ठीक है। तो बट वी डोंट वांट दैट, राइट। सो जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आपका जो फर्स्ट रहेगा दैट इज रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर 12th बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें से भी आपके रिवीजन 2 से काफी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको जो मेन फोकस करना है फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर दैट इज लूपिंग, आइडेंटिफायर्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, प्लस लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल एंड डिक्शनरी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बेटा टॉपिक फंक्शंस। फंक्शंस में आपके हैं टाइप ऑफ फंक्शंस, यू विल स्टडी बिल्ट इन फंक्शंस। फंक्शंस आपने 11th क्लास में भी यूज किए लाइक इंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, लिंक फंक्शन, len। इसमें हम करेंगे इफ वी वांट टू क्रिएट आवर ओन फंक्शंस, तो हाउ डू वी डू दैट, मींस यूजर डिफाइंड फंक्शंस, राइट। प्लस आप ये पढ़ेंगे क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, पोजिशनल पैरामीटर्स, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज, स्कोप ऑफ वेरिएबल, ये सारी टर्म्स आप पढ़ेंगे। अगर आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है तो दिस इज द चैप्टर आफ्टर पाइथन रिवीजन 2 जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप कोशिश करना पाइथन के चैप्टर्स को ही कवर करो बिकॉज इट विल टेक टाइम। आपके इसमें प्रैक्टिकल्स होंगे, जितनी प्रैक्टिकल की प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली इट विल बी बेनिफिटेड टू यू, ठीक है। इतना बेनिफिट आपको रहेगा। उसके बाद हमारा आता है बेटा फाइल हैंडलिंग। 3 टाइप्स की फाइल्स है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है बट टफ नहीं है, राइट। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बाद इसी में ही आपका बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज पाइथन लाइब्रेरी। ये काफी छोटा चैप्टर है, इसमें कि आप अपनी पाइथन लाइब्रेरीज, पैकेजेस, मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, प्लस जो हमारे पास इनबिल्ट मॉड्यूल है उसमें से भी आपका क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट क्वेश्चन है, रैंडम मॉड्यूल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 2 चैप्टर्स हैं बच्चे, रिकर्शन एंड आइडिया ऑफ एफिशिएंसी। ये वो चैप्टर्स हैं जो लास्ट सेशन में, मीन्स जो इस साल हमारा बोर्ड एग्जाम देंगे 2021 में, ये उनके सिलेबस से रिड्यूस हो गए थे ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन, बट आपके करिकुलम में ये वापस से ऐड ऑन हो गए हैं। अगर 2021-22 में सिलेबस रिड्यूस नहीं होता है तो यू हैव टू कवर दीज 2 चैप्टर्स ऑल्सो, बट अगर CBSE कोई नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे रिगार्डिंग द रिड्यूस सिलेबस सो आई विल अपडेट यू विद दैट ऑल्सो। नेक्स्ट इज योर डेटा स्ट्रक्चर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लस इजी टॉपिक कि डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। स्टैक और क्यू पढ़ोगे आप इसमें बेटा, पुश एंड पॉप, NQ, DQ इज एम्प्टी, पीक इज फुल, ये सारे ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे, राइट। और इम्प्लीमेंटेशन इसका थोड़ा प्रोग्रामेटिकली भी है कि आपके प्रोग्राम्स होंगे पाइथन में, स्टैक और क्यू को हम लिस्ट के थ्रू किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये सारे चैप्टर्स मिलाकर के आपके इनकी वेटेज रहेगी बेटा 40 मार्क्स ऑफ यूनिट 1। नेक्स्ट यूनिट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, 10 मार्क्स। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये यूनिट टफ लगती है, बट अगर आपने अप टू 8th-10th तक भी कंप्यूटर पढ़ा है तो ये नेटवर्किंग की टर्म्स आपने पढ़ रखी है। व्हाट इज नेटवर्किंग, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स, व्हाट आर टोपोलॉजीज, ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। ये आपका यूनिट 2 है, इसकी वेटेज है बेटा 10 मार्क्स, राइट। अब इस 10 मार्क्स में से 1 आपका आता है बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये पैटर्न आई एम टेलिंग यू जो आपका लास्ट सेशन का है। इस साल अगर कोई चेंज होगा तो आई विल अपडेट यू विद दैट ऑल्सो। एक इसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा बेटा 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का है। एंड उसके बाद आपको इसमें से एक आता है फुल फॉर्म्स का क्वेश्चन, आपको ये आएगा आपका 2 मार्क्स का, 4 फुल फॉर्म्स विल बी गिवन टू यू, 5 + 2 7। अब बात आती है बेटा 3 मार्क्स की, ठीक है। ये भी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, प्लस सारी एक वीडियो जिसमें आपके सारे के सारे क्या है फुल फॉर्म्स। अब 3 मार्क्स के लिए आपको इसमें से पढ़ना है, ठीक है। नो डाउट जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है फुल फॉर्म है वो भी इन्हीं में से ही होंगे। इसके लिए जो बेस्ट मेथड रहता है इस चैप्टर को इजीली करने का, जितने आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो हर एक चैप्टर के नेटवर्किंग के वो हमने सारे अच्छे से पढ़ने हैं, कोई नहीं छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 3rd यूनिट आती है बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आपका फर्स्ट रहेगा बेटा MySQL डेटाबेस इंट्रो,
देन MySQL, इसमें इतने पोर्शन में जो आपका MySQL का है, पाइथन से कहीं कुछ रिलेशन नहीं है, सिर्फ MySQL में सिंपल कमांड्स हैं, यू जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट। सिंटेक्स ध्यान रखना है आपने कमांड्स का। उसके बाद आता है अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। इंटरफेस पाइथन विद MySQL डेटाबेस, पाइथन आप लोगों ने पढ़ा, MySQL इससे पहले वाली यूनिट, इसी यूनिट में से पहले पढ़ा है, उन दोनों की हमने क्या करनी है, कनेक्टिविटी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जो आपका 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट बनेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे से करना है कि आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल का। पाइथन का प्रोग्राम होगा 7 मार्क्स का, 5 SQL की क्वेरीज होंगी, इट कैन बी बेस्ड ऑन आइदर 1 टेबल और 2 टेबल्स, दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। देन आपकी एक प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, वो भी हम कंप्लीट आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि उसमें मिनिमम 20 प्रोग्राम्स होने चाहिए, SQL की क्वेरीज होनी चाहिए, 2 प्रोग्राम्स आपके कनेक्टिविटी के होने चाहिए। उस फाइल की वेटेज रहेगी बेटा 7 मार्क्स, एंड यू हैव टू मेक द प्रोजेक्ट दैट विल बी ऑफ 8 मार्क्स, और वाइवा रहेगा आपका 3 मार्क्स का। तो ये इसका जो टोटल है प्रैक्टिकल का दैट विल बी ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स की लिस्ट गिवन है सजेस्टेड, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल को प्रिपेयर करोगे। एक सेपरेट वीडियो ऑल्सो आई विल मेड फॉर द प्रैक्टिकल्स, ठीक है। ये आपको SQL की क्वेरीज गिवन है। आई होप ये सिलेबस अच्छे से आपने देख लिया, समझ लिया किस तरीके से क्या पढ़ना है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जो सेशन हमारा लास्ट ईयर का था, ठीक है, 2020-21, उसमें भी ये सेम सिलेबस था, सेम कंटेंट थे। ऑल दिस कंटेंट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल, डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी मैं न्यू वीडियोस ऐड ऑन करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, राइट। एंड इन दिस सेशन ऑल्सो आई विल ट्राई, जहां मुझे लगेगा इस चैप्टर की वीडियोस चेंज करनी है, अपडेट करनी है, जहां पर अपडेशन रिक्वायरमेंट है, दैट ऑल्सो आई विल डू। नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपने इसको किस तरीके से ओपन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द एड्रेस बार यू हैव टू टाइप youtube.com, or you can type the name of my channel youtube.com/it's Swati Chawla official, right? This is the URL of my own channel, www.youtube.com/Swati Chawla, right? अब अगर आपने इस तरीके से नहीं डालना, you just have to type youtube.com and in the search bar you can type my name, that is Swati Chawla. You have to type this and then press the enter key, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है, do press this subscribe button so that जितनी भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो जरूर आपके पास आ जाए, राइट। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अब उसके बाद आपने क्लिक करना है, इस चैनल को ओपन करना है। जिनके पास मोबाइल है मैं मोबाइल का भी बता दूंगी बेटा, ठीक है। वहां पर आपने किस तरीके से ओपन करना है। देन यू हैव टू गो टू दिस प्लेलिस्ट सेक्शन। प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर फर्स्ट जो सेक्शन है दैट इज क्रिएटेड प्लेलिस्ट, यू हैव टू चेक आउट दिस सेक्शन। मैंने जितनी भी क्लास 12th की प्लेलिस्ट है ये सारी की सारी चैप्टर वाइज बना रखी है बेटा क्लास 12th वाले सेक्शन में। सिमिलरली फॉर क्लास 11th हियर यू विल फाइंड द चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट, राइट। इसको मैंने सेक्शंस में डिवाइड करी है, ऐसा नहीं किया कि क्लास 12 प्लेलिस्ट वहां पर सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, नहीं। मुझे लगा कि इसको अगर मैं सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखेंगे तो दैट विल बी बेटर। तो आपको अब जो ये फर्स्ट प्लेलिस्ट है दैट इज सीबीएसई सिलेबस, इसी प्लेलिस्ट में आई विल अपलोड दिस दैट प्लेलिस्ट वीडियो जो हमने आज अभी कवर किया सिलेबस का। इसको मैंने सीक्वेंस में ही रखा है, पाइथन रिविजन 2, देन फंक्शंस, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, पाइथन लाइब्रेरीज, मैथमेटिकल स्ट्रिंग फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, रिकर्शन, एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी, डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, MySQL एंड देन इंटरफेस पाइथन विद MySQL। जब ये सारे टॉपिक्स आप डिटेल में पढ़ लोगे उसके बाद मैंने एक प्लेलिस्ट अपलोड करी है बच्चे, वन शॉर्ट सीरीज, ठीक है। जब आपके एग्जाम्स होने वाले होंगे बिफोर दैट ये आपके रिविजन के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी, वन शॉर्ट सीरीज। उसके बाद आई हैव अपलोडेड दिस प्लेलिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज की। फंक्शंस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस की हैं। इसमें आपके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं बेटा इस प्लेलिस्ट में।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये भी चैप्टर वाइज है बेटा. देन सैम्पल पेपर, सम हैव डिजाइन बाय मी, सीबीएसई इशूड सैम्पल पेपर इज आल्सो देयर, प्लस लाइव सेशन भी आई हैव टू. ठीक है, जितने लाइव सेशंस आई हैव टेकन उसकी जो वीडियोस हैं दैट आल्सो आई हैव अपलोडेड. एंड देन लास्ट इज प्रोग्रामिंग कॉर्नर. जितने आपके प्रोग्राम्स हैं, ये जो भी मैं और अपलोड करूंगी वो सारे प्रोग्राम्स आपको कहाँ मिलेंगे, प्रोग्रामिंग कॉर्नर में. ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो अगर आपने वहां से चैनल की प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है चैप्टर वाइज, तो हाउ डू वी डू दैट? So the very first thing, you have to open YouTube from your mobile phone, and then here you have to type the name of my channel, that is Swati Chavla. Right? After that you have to click on this my channel logo, and then you have to select playlist from here, and then you can see this section wise. First is CBSE class 12 computer science with Python. When you click on this arrow option and then at then show all, see this. So आपको यहाँ पर सारी की सारी जो playlist मिलेंगे that will be chapter wise, right? Yeah, I think it's open for class 11. From here you can open, and for class 12 it's here. The very first playlist is of syllabus, then Python revision tool, then functions, output base. ये सारी आपकी chapter wise playlist create की हुई है. जो भी chapter आपको start करना हो, so from here you can open and search. Or the easiest thing, you can search any topic on the YouTube with my name. Let's suppose you want to open computer networking, so you can just write the name of the topic or chapter and then write my name, computer networking Swati Chavla, or you can write Swati Chavla computer networking. Hope it helps. So now I think you are very much clear with your curriculum plus chapters जो आपने करना है. All the very best from my side, and start studying. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.